Hey everyone, welcome to my channel. My name is Diksha Dogra. I'm a manifestation law of attraction coach and I have been training people from past 4-5 years about law of attraction, conscious manifestation. I welcome you all to my channel. Today I'm going to talk about a wonderful technique, a marvelous technique 369. I'll explain you everything about that, but before that, sit calmly and make sure there is no distraction while watching the video. I need you to know this, like why this technique is powerful, when you can do it and how you can do it, and for how long you need to do it. All right. Now, first thing is why 369. A great gentleman called Nikola Tesla. If you search Nikola Tesla on YouTube, on Google, you will come to know that he was a great scientist. He was called as the father of physics even. So he was a great scientist and he was literally obsessed with numbers. And people used to call him crazy, but he was not like any ordinary person who will get crazy for something, right? He knew the science behind this 369 number, so he started using that number everywhere, in every possible way in his life. Why? Because 3, if you use that number in any way, it will always end up with number 9. All right. Another thing is 369. Whenever we think about something, whenever we do something, we tap into some kind of frequency, right? This number 369 is a number which vibrates at very high frequency. When 3 numbers come together, especially 369, they come together and create a very high vibrational frequency. So if anybody is coming across this number as an angel number 369, 639 or something like that in the series, then you know that this is your sign to start using this technique. And I urge you, if you have been seeing this but not doing anything, then use this video as a learning module and start using this technique as soon as you can. Now, a lot of people, ask me like which pen I should use, which, journal I should use. To take any journal for that, okay? And any pen, you can use green, you can use blue, you can use red. Avoid using black pen, but other than that, any pen would be okay for you. Now, journal, yes, use journal. Don't try to write it on, type it on your iPad, laptop, your phone notes. Avoid that because, when we write something, we involve our subconscious mind in writing that. And that is very important, right? And that is something which we need to get rewired by whatever we are manifesting consciously in our life. So please, आप आराम से अपने subconscious mind को train करते हुए लिखोगे तो बेटर रहेगा. अब मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती मेरे कोई जर्नल मेरा पढ़ ले या कोई मेरे नोट्स देख ले. इट्स ओके. आप अपने जर्नल को हमेशा जहां भी आप चाहते हो अपने साथ रखो. छोटी सी डायरी ले लो एंड आप इस टेक्निक को यूज करना शुरू कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज कब तक ये टेक्निक करनी चाहिए. मैं टेक्निक कैसे करनी चाहिए उसमें एंड में आऊंगी, बट जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस क्वेश्चंस जो मैं बहुत ज़्यादा जो मुझे लोग पूछते हैं. कब कितने देर के लिए करनी चाहिए. आप 21 डेज के लिए कर सकते हैं, आप 33 डेज के लिए कर सकते हैं, आप 45 डेज के लिए कर सकते हैं, आप 60 डेज के लिए कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स 90 डेज के लिए भी कर सकते हैं. एंड अगर जो मैंने नंबर्स अभी आपको बताए इनको ऐड करोगे तो इनमें भी या तो 3 बन रहा है, या तो 6 बन रहा है, या तो 9 बन रहा है. ठीक है. दैट्स वाई आई रेकमेंड यू टू फॉलो एनी ऑफ दीज डेज कि आप इतने दिन के लिए इस टेक्निक को यूज करो. अब यूज किस चीज के लिए करनी है. जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, उस सपने को आप एफर्मेशन की फॉर्म में, इंटेंशन की फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में लिखो. ठीक है. हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स यूज करो, जैसे कि ग्रेटफुल. किस तरह से ग्रेटफुल आप होंगे जब वो आपको सपना आपका सच होगा. हाउ जॉयफुल यू आर फीलिंग, हाउ हैप्पी यू आर, हाउ ब्लेस्ड यू आर फीलिंग, हाउ वंडरफुल, मैग्निफिशेंट आप कैसे फील कर रहे हो. ये वर्ड्स आप अपनी एफर्मेशन में लिखो. एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बताती हूँ, लाइक सपोज कि मुझे ई सीरीज मेबैक सीरीज मर्सिडीज की चाहिए, राइट, ब्लैक कलर की. तो मैं अपनी एफर्मेशन कैसे बनाऊंगी. आई एम फीलिंग wonderful and extremely grateful to have this black Maybach car. I feel so happy while driving it. Thank you universe. तो इस तरह से मैं अपनी ये एफर्मेशन बनाऊंगी. अगर आपके पास कुछ आपके दिमाग में है जो आपको लगता है कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, बी क्लियर अबाउट दैट. क्लैरिटी इज पावर. क्लैरिटी होगी तो वाइब्रेशन में ट्यून भी कर सकते हो.
क्लैरिटी नहीं होगी, जब खुद को समझ नहीं आ रहा, तो आप एनर्जी भी कैसे पकड़ोगे जिससे पे अलाइन होके आप उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे। सो क्लियर रहो कि क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन एफर्मेशन बनाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर आप कोई रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कोई ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसे प्रेजेंट टेंस में लिखो, ठीक है। अब आप कुछ डेट नहीं डाल देना कि मैं चाहती हूँ कि ये सपना अब तक पूरा हो जाए। डेट डाल रहे हो मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। When I am telling you to put your dream in a present tense, मतलब कि ये हो रहा है या हो गया है, ठीक है। अगर अब भी आप कंफ्यूज हो तो अपनी एफर्मेशन अपने हिसाब से, जो भी आप एफर्मेशन बना रहे हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में डालो, टैग मी, मैं आपको बताऊंगी इफ दैट एफर्मेशन रिक्वायर्स टू बी रेक्टिफाइड, तो आई विल डू दैट एंड आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। सो अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, बट ब्लैक पेन प्लीज यूज मत करो, नॉट प्रेफरेबल। देन आप जर्नल लिए, आप बिल्कुल भी अपने नोट पैड, अपने फोन के नोट्स को अपने लैपटॉप पे इस चीज को प्रेफर ना करो लिखना। आप एक जर्नल खुद को गिफ्ट दो एंड स्टार्ट कीपिंग दैट फॉर योर 369 टेक्निक। उसके बाद आप अपने एफर्मेशन की क्लैरिटी लो कि क्या एफर्मेशन आपको लिखनी है। देन क्लैरिटी लेने के बाद अगर आपको फिर भी डाउट फील होता है, आप कमेंट करो, आई हेल्प यू आउट इन किस तरीके से आपको एफर्मेशन बनानी चाहिए। नाउ 369 टेक्निक क्या है? अब 369 टेक्निक में आपको सबसे पहले 369 टेक्निक में आपको अपनी एफर्मेशन उसे शॉर्ट रखिएगा ताकि आप उसे उस टाइम के लिए लिख भी पाओ। तो आपको वो एफर्मेशन जो है वो आपको 3 बार सुबह लिखनी है, 6 बार दिन में लिखनी है एंड 9 बार सोने से पहले लिखनी है। अब कई लोग कहते हैं मैंने आज सुबह 6 बजे लिखी, ठीक है, बट दिन में मैंने 3 बजे लिखी, क्या वो ठीक है? ऑफ कोर्स ठीक है, ठीक है। और रात को सोने से पहले, जब भी आप सोए उससे पहले लिखो, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता आज आपने 7 बजे लिखी, कल भी आपको 7 बजे लिखनी है। इट्स ओके अगर आप कल उसे 8 बजे लिखो, वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। बट मेक श्योर आप इनफ टाइम दो, ठीक है, सुबह, दोपहर, रात में। एंड रात में अगर आपको लगता है कि मुझे पार्टी करने जाना है, मुझे आज फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा पहले लिख लो। बट 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना काम, अपने आप को पहले प्रायोरिटी देके देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर डे, ठीक है। तो 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को एंड 9 बार रात को आपको वो एफर्मेशन लिखनी है। सेम एफर्मेशन लिखोगे एंड जब आप उसे लिखोगे एंड आप एक एक वर्ड को फील करोगे, विजुलाइज करोगे, जो भी आप लिख रहे हो, कि आप उसे कैसे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, वो इमोशंस को फील करोगे। अगर आपने मैग्निफिसेंट लिखा है तो आप लिखते लिखते उसको फील भी करोगे, ग्रेटफुल भी फील करोगे, जैसे कि वो सपना पूरा हो गया है एंड आप उसे एंजॉय कर रहे हो। खाली लिखना विल नॉट हेल्प यू। हर एक चीज का आउटकम जो है वो एक इमोशन है, ठीक है। तो आप इमोशंस वो फील करोगे, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा कि ये चीज एक्चुअल में हो रही है एंड इट विल एक्सेप्ट इट एज ट्रू, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में ये बार बार बोलती हूँ कि ये चीज एक्सेप्ट करवाना सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी होगी कि आप उस चीज को फील करोगे, उस इमोशन को फील करोगे। दैट इज वेयर योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट इट एज ट्रू, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया, 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को सेम एफर्मेशन एंड 9 बार सोने से पहले आप उसे लिखो, ठीक है। एंड जैसे कि बताया 21 डेज, 33 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 90 डेज के लिए आप उसको लिखना कर सकते हो। बट जैसे कि डोंट मिस विजुअलाइजिंग और थिंकिंग और फीलिंग अबाउट दैट थिंग while writing it, because that is the key to make this technique useful. This is something which my clients have used number of times. I have manifested a lot of things in their life, including me. I have used that technique to manifest miraculous things in my life, and I have been using it to manifest more and more in my life. If I can use it, my clients can use it. This technique is there for you. Nikola Tesla was not any mad person. He was a genius person. If that person went crazy to use this technique everywhere in every way, how about you and someone you know who think like this technique can be helpful to them to manifest consciously in their life? Please share this technique, this video with that person so that वो भी आपकी तरह कुछ लाइफ में amazing manifest करे, because we all deserve to live a beautiful life. So thank you so much.
कोई भी क्वेश्चन अगर एफर्मेशन को ना लेके, कोई भी अगर क्वेश्चन है इस टेक्निक को लेके, आप प्लीज कमेंट में डालो. I'll get back to you. I'll make sure that I'll get back to you. Thank you so much for watching this video till end. Happy manifestation.